करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ जो। नाथ जगा
राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा राधा कृष्ण प्राण मोरा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा राधा कृष्ण प्राण जीवने नराने गति आरनाहि मोरा जीवने मराने गति आरनाहि मोरा राधा कृष्ण प्राण मोरा राधा कृष्ण प्राण कालिंदीरा कोले गेली राधांबेरा बाला कालिंदीरा कोले गेली राधांबेरा बाला राजना वेदीरा उपास सब राजना वेदीरा उपास सब राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा गौरी अंगे दिवचुआ चंदने रगाना
किसी और की जरूरत नहीं. We don't need anybody else. She alone can. हाँ? ह्यूस्टन की कोकिला कोकिला हरे कृष्णा ओम ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम. हम लोग का बहुत सौभाग्य है. We are very fortunate that we are assembled here today in the house of Anurag and Nishtha. So thank you to Nishtha and Anurag for hosting today's program. And whenever I come to their house, I always pray that I have that Nishtha in the lotus feet of Shri Gurudev and Radha, so that I can develop the Anurag. So today this is our Bhakti Kutir program. So I'll just give a 2-minute introduction. We, by the mercy of Shri Gurudev, we recently started this Naam Hat program twice a month, and we are about 12-14 families, and by rotation we are having the program at everyone's home. And our general pattern is that we have a short kirtan, and after that we take a topic to discuss. We started actually from Bhagavad Gita, and not verse by verse, but as Sri Krishna in every chapter is describing a certain particular topic. So everyone reads, and then we have an interactive discussion, a lot of questions and answers that helps everyone understand what our Siddhanta is and get all their doubts clear. So, but today, we are very fortunate that since we have a very special guest, His Holiness Shri Bhaktivedanta Van Goswami Maharaj Ji among us. And as they say, Sone pe Suhaga. So, and buy one get one free, right? So today we have one special and another special. I'm domestic. So buy one special thing and get another special thing. So today we also have Srimad Bhaktivedanta Siddhanti Maharaj blessing everyone. So today we will not follow our regular pattern of Bhakti Kuti, so we can hear from the lotus mouth the Harikatha. So I will not take a lot of time, but if we finish in time, and then if anyone has any questions, so I will ask them to maybe give some time at the end, so that anyone has any questions they can ask. So first of all, I will request Srimad Bhaktivedanta Siddhanti Maharaj to speak. Is a voice. Voice is okay, is it too loud? Hare Krishna. नीचे चले जाए इसको ऑडियो मैं इसको पीछे से No. Oh, wow. Yeah, that's like a private. Hare Krishna. Hindi or English?
Lord Krishna, they are also serving. Those who are cooking, those who are cleaning, in any way one feels comfortable and qualified, we can get connected to Krishna only through seva. There is no other connection. Okay. Just yesterday we observed Guru Purnima, the first day of Chaturmasya, if you are familiar with this. And where this Chaturmasya, the 4 month comes to end. Yeah? I was meditating on this today. It begins this 4 month, this very auspicious month. No any material pious activities are performed in this 4 month. It is only meant for bhajan and to seva for Krishna. This 4 months. It begins with Guru Purnima and it ends up with Ras Purnima. This 4 month. The beginning is Guru Purnima and then ends with Ras Purnima. Ras Purnima means what? Shri Bhaktivinoda Thakur, one of our Acharya, he composed so many beautiful songs. In one of the songs he said, Yugal Sevaye Shiras Mandale Niyukt Karibe Amar Lalita Sakhira Ayogya Kinkari Vinod Dhariche Pai. Srila Bhaktivinoda Thakur, who propagated the message of Mahaprabhu all over the world, today what we are singing and hearing and speaking is just because of the blessings of Srila Bhaktivinoda Thakur, a great Acharya. So he is writing something so beautiful at the end of the bhajan. Yugala Sevai. Everyone wants to have service of Radha and Krishna. Yeah. Everyone means those who are pious and inspired. Those everyone. Yeah. They want to get service of Radha and Krishna. But we may say, no, we are serving Radha Krishna, we are decorating Radha Krishna in the temple, we are cooking for Thakurji at home. Although we are doing this service, but what should be the mood and intent behind the service? That has to be known and important to practice. What should be the mood? And who will tell this mood? All these great acharyas, the preachers, they tell us. And what is the aim and object of human life? I'm not going to speak very high philosophy today. But aim and object of spiritual life is what? To get service of Radha and Krishna. And what kind of service? In what pastime? The best amongst all the pastime is Maharas. When Shri Radharani and Krishna and all the gopis, they are dancing and singing. Which is, in India, many people take this as it's not appropriate and proper. Krishna dancing with 100 billion gopis. But this is again seva. Radharani serving Krishna. One of the name of Radharani is Seva Rani. Srila Bhakti Vigyan Bharti Gosai Maharaj used to say, another name of Radharani, Seva Rani, means she is embodiment of seva. She cooks for Krishna. 108 ovens. She alone cooks for Krishna. Even though she had thousands and thousands of maid servants to assist her, but she alone served Krishna. Every activity of Radharani is to serve Krishna. That's why her name is Seva Rani, means embodiment of seva. Understand? So she is serving Krishna, but Krishna, who is Supreme Personality, Anadi Radhir Govind, Sarva Karanam Karanam. What Krishna is doing there is also serving Radharani. And those who are surrounding Radha and Krishna, the gopis, they are serving Radha and Krishna. But with these three important gopis, Radharani and Krishna, where they are standing and performing this pastime, Shri Vrindavan Dham, which is very important.
So Vrindavan Dham is serving Radha and Krishna and the gopis. Understand? The whole mood is about service. Seva vilasha mangi narottama das. Without seva, nothing. Krishna is not just enjoyer, he enjoys the seva. Just like today we are at Nishta Didi's home. And after program she is going to feed everyone. Beautiful feast. She is working all day and cooking all day, cleaning, so much, and Anurag too. So you're going to see, but this is my experience. When I'm sitting on the dining, she always come and serve more and more and more. But the point to be noted here, I'm relishing because I'm eating. What she relished by forcing me to eat more. What she's enjoying with that? The enjoyment of seva. I'm tasting, I'm relishing. But she's relishing more than me by serving. This is the beauty of seva. It gives more relishment. It gives more bliss and happiness. Yeah? Especially when so many Vaishnavas come home. This is such auspicious occasion. Opportunity to serve so many Vaishnavas. And what we get in return? The blessings. Which comes in disguise. Or sometimes it comes directly. And it's only a matter of how we feel that. Yeah? That feeling, that emotions comes with the seva. So even though Krishna is enjoyer, but what he is enjoying? He is enjoying serving Radharani. So Bhakti Thakur ji is saying, Yugal Sevaya Shiras Mandale Niyukt Karibe Amar. Shri Bhakti Thakur is saying, please engage in the service of Radha and Krishna when they are dancing in Rasalila. Lalita Sakhira Ayogya Kinkari. I am the most insignificant maid servant of Lalita Sakhi. Shri Bhakti Thakur ji is addressing like this. But how we going to reach to this highest point? If you have to go to this first floor, you can't just jump. You have to go by stairs. First stair, next, second, third, fourth, five, like this. So it begins with observing Guru Purnima. And Guru Purnima for Gaudiya Vaishnavas, explained by Srila Prabhupada, is not observing or observance of worshipping Guru once a year. For Gaudiya Vaishnavas, every single day is Guru Purnima. Every single day. Although Guru Purnima is a very special occasion, but with their service mood, what practice? They chant every day, they chant the mantras every day, following Ekadashi, serving Vaishnavas, doing Arati at home, reading Bhagavad Gita, hearing Bhagavad Gita, Vishnu Prabhuji's teaching, such beautiful insight of Bhagavad Gita. You know, because many people, they have no idea, they have general idea of Bhagavad Gita. But insight of Bhagavad Gita, Sachin Prabhu also does this, Bhagavad Gita seminars. What they are trying to give? The insight of Bhagavad Gita. So these are the services in sequence which leads us to observing Guru Purnima every single day. So tell me, I'm ending up here. Audience, you want to observe Guru Purnima once a day or once a year? Tell me. How many of you want just once a year? No one. How many of you want once a day? How many of you want? Don't be shy. Once a day. Okay. But I'm telling you, it's not about once a day, it's about every hour. Even that is not true. Every minute is Guru Purnima for the devotees. Because all their activities are centered in serving Krishna. We have wonderful idol grastas here. Yeah. Our Pujapat Tanmay Prabhuji, Sushil Prabhuji, Sachin Prabhuji, Vishnu Prabhuji, and they are idol examples. Yeah, they're doing their work, they're business people, they have children.
but they observing Guru Purnima every single minute because the intent of every word, their home, their family is to serve Krishna. If we follow this, we are observing Guru Purnima every single minute. Thank you so much. Hare Krishna. महाराज जी आज आप बोलो, ये लगाना तो कैसे लगाना? This is a hello. हो गया. जय श्री नाम शिष्टं मनोपि सचैपुत्र स्वरूपं रूपं तस्सव्रजं गुरुपुरीं माथुरीं कुष्ठवाटे राधा कुंडं गिरिवरमुहो राधिका माधवासं प्राप्त जस्य प्रथित कृपया श्रीगुरु तं नतोऽस्मि. नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते भूपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः. भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं. 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 भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितास्तं. वदामि राधां करुणावराद्र ततो मम नास्ति गतिर्न सापि. आदेवी कापूभर गदगद यद्वाचा जाचनी पत्यभुवि दण्डवद्रुता. अस्य प्रसादमवदास्य जनास्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधेये. श्रीरूपमञ्जरीकरार्चितपादपद्मवसन्दनभुजार्पितमस्तकाय हामदतकनकगौरी पदारविन्दं संग्रहामि सनकै स्तव किं करिष्ये. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 सबसे पहले प्रभात करूं नेत्र विवाह प्रविष्टम विष्णुपाद आशुतर सतस्य श्रीमंत भक्ति वेदांत श्रील भगवान गोस्वामी महाराज एवं शिक्षारी एवं संघनाथुरे नेत्र विवाह प्रविष्टम विष्णुपाद आशुतर सतस्य श्रीमंत भक्ति वेदांत श्रील भगवान गोस्वामी महाराज का वाचरण कमलों में अनंत करोड़ सात्यांग दर्शन करता हूँ। तत्पश्चात नेत्र विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री भक्ति श्रीधर गोस्वामी भक्ति पूरी गोस्वामी महाराज श्री भक्ति विक्रम श्री भारती गोस्वामी महाराज प्रणाम प्रभु जी चरण श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज एवं विष्णु प्रभु और तन्मय प्रभु तरुण कृष्ण प्रभु सुशील प्रभु एवं समस्त वैष्णवी सबके चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार है। सबको आगे आप लोग सब आगे आ जाओ, बहुत जगह आगे। अंजलि देवी आप लोग सब आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ, बहुत स्पेस है आगे। सब डरते हैं। हाँ वो इतना दूर होते हैं। अरे आगे आ जाओ, सब लोग आगे आ जाओ प्लीज। मृदंग फोटो मेरा स्वभाव ही है अधिक बोलना, किंतु अधिक समय लेना नहीं चाहता। अभी 8 बज गया ना, नहीं 8:10 है। बहुत दूर दूर से लोग आप लोग भी आए हैं, आप लोग को भी जाना है। अभी महाराज जी ने सुंदर रूप में गुरु पूर्णिमा के बारे में बताया, बहुत सुंदर, अच्छा लगा। और विशेष करके जिस गृहस्थ स्वामी के घर में हम लोग आए हैं, नाम ही कैसे सुंदर है, अनुराग प्रभु है। अनुराग की व्याख्या तो बहुत सुंदर हमारे गोस्वामी पाद वर्णन करते। अनुराग के 2 लक्षण मैं बताता हूँ। एक होता है क्या, परस्परानु स्नेहानुबंधनम, और दूसरी दर्शने अतृप्तता। ये अनुराग के लक्षण कहा जाता है। उज्जवल मुनि ग्रंथ में रूप गोस्वामी इसको वर्णन करते हैं। और जो गृहस्थ स्वामिनी जो है, उनके नाम भी सुंदर है, निष्ठा बताया। इनके ठाकुर जी जो है, इसको ये ठाकुर जी है ना, इसको मैंने प्रतिष्ठा किया हुआ था, बहुत सुंदर। और इसके पुत्र, आपके बेटा के नाम अभ्यान, तन्मय, अच्छा। प्रभु दक्षिण देश भ्रमण के समय एक छोटा बच्चा भी अपने हाथ में 3.5 हाथ होगा, और जितने भी लंबे व्यक्ति सब देखो नाप करके कितने होगा, 3.5 से ज्यादा नहीं। किंतु महाप्रभु अपने हाथ से कितने थे, 4 हाथ थे। और इतने सुंदर जो दिव्य महाप्रभु की जो सुंदर जो रूप। और जब महाप्रभु श्रीरंगम में शिव विग्रह के निकट जब नृत्य आदि कर रहे थे,
और महाप्रभु ऐसे सुंदर नृत्य आदि देख करके सब लोग आकृष्ट हो गए। बहुत सुंदर सब वर्णन है। उस समय ये भट्ट परिवार की जो है त्रिमल्ल भट्ट, वेंकट भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती पाद, उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी छोटा बालक थे, कई 6-7 साल के हो गए। तो ये लोग भी महाप्रभु की ऐसे उद्दंड नृत्य आदि देख करके इतने प्रभावित हो गए और ये लोग महाप्रभु को अपने घर में बुलाया। और ठीक उसी समय ये गुरु पूर्णिमा के बाद ही क्या चलते हैं, जैसे महाराज जी ने बताया ना, हम लोग के अभी चातुर्मास प्रारंभ हो गए। कहीं कहीं एकादशी से शुरू करते हैं, कहीं कहीं द्वादशी से, कहीं पूर्णिमा से शुरू करते हैं। श्रीमन महाप्रभु ये 4 महीने जो है श्रावण, भाद्र, आश्विन और कार्तिक, ये 4 महीने का चातुर्मास्य कहा जाता है। ये 4 महीने संत महात्मा भ्रमण नहीं करते हैं, एक स्थान पर रहते हैं, भजन आदि करते हैं। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ये भट्ट परिवार के घर में 4 महीने काल रहे। कितने दिन? 4 महीने काल। किंतु देखो ये भट्ट परिवार जो है, प्रबोधानंद सरस्वती पाद, त्रिमल्ल भट्ट, वेंकट भट्ट, ये सब लक्ष्मी नारायण के उपासक थे, श्री संप्रदाय। हम लोग के 4 संप्रदाय माना जाता है, श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनक संप्रदाय। शास्त्र में ऐसे लिखा गया, पद्म पुराण में स्पष्टीकरण किया, संप्रदाय विहीना मंत्रास्ते विफला मता, श्री ब्रह्म रुद्र सनक इति क्षिति पावना। ये 4 संप्रदाय के बारे में लिखा गया। श्री संप्रदाय लक्ष्मी नारायण के उपासक, श्री संप्रदाय रामानुज संप्रदाय की कहा जाता है श्री संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय है, जैसे हम लोग ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, श्री ब्रह्म संप्रदाय, श्री ब्रह्म रुद्र संप्रदाय और चौथा सनक संप्रदाय, सनक सनंदन सनक। ये 4 संप्रदाय के अंतर्गत होकर के मंत्र ग्रहण करने पर मंत्र की फल प्राप्ति हो जाती है। क्षमा करें कि इधर उधर के संप्रदाय से मंत्र ले लेते हैं, किंतु शास्त्र में लिखा है ये 4 संप्रदाय से ही आपको मंत्र ग्रहण करना पड़ेगा, किसी के। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं कोई संप्रदाय सृष्टि नहीं किया, यद्यपि स्वयं भगवान है, तो इसी संप्रदाय के उपासक थे, लक्ष्मी नारायण के उपासना करते थे। और महाप्रभु उनके घर में कितने दिन तक रहे? 4 महीने। अच्छा, एक व्यक्ति के घर में 4 महीने तक रहे तो उनके साथ कितने हिलमिल हो जाता है। हम लोग 2-4 दिन रहते हैं तो उतने कितने प्रेम प्रति हो जाता है। और 4 महीने तक श्रीमन महाप्रभु उनके घर में रहे। तो महाप्रभु जो संत महात्मा जब रहते हैं क्या करते हैं? हरि कथा बोलते हैं। संत महात्मा के काम दूसरी नहीं है, संत महात्मा के काम क्या है? हरि कथा कीर्तन करना है क्या नहीं? इसलिए तो संत महात्मा सर्वत्र विचरण करते हैं। भगवत विधा भगवता तीर्थभूता स्वयं प्रभु तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि शांतस्तेन गदाभृत। संत महात्मा सर्वत्र इसलिए विचरण करते हैं उस स्थान को पवित्र कराने के लिए। क्यों? पापी लोग तीर्थ आदि में जाकर के स्नान आदि करके वह पाप को भी छोड़ देते हैं, और संत महात्मा उस स्थान पर जाकर के उस स्थान को पवित्र कराते। तो संत महात्मा की हम इसलिए करें, संत महात्मा का काम है हरि कथा कीर्तन।
चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रत्यह हर रोज उनके घर में हरि कथा कीर्तन करते थे। गुरुदेव कहते थे कौन सा कथा बोलते थे? बोले ताजा ताजा कथा। बोले ताजा ताजा कथा क्या है? श्रीमान महाप्रभु श्रीरंगम में आने के पहले महाप्रभु रायरमंद से मिले थे, गोदावरी के तट पर, जहां पर रायरमंद संवाद के बारे में आप लोग श्रवण किया। और वही कथा जो है श्रीमन महाप्रभु उनके घर में कीर्तन आदि करने लगे। और ऐसे सुंदर कथा, रासलीला आदि कथा नित्य प्रत्यह महाप्रभु कीर्तन आदि करते थे। महाप्रभु के ऐसे सुंदर कथा सब लोग आकृष्ट हो। हर रोज वैष्णव लोग महाप्रभु के घर में बुलाते थे और महाप्रभु सबके निमंत्रण स्वीकार करते थे, घर घर में जाते थे। जैसे हमारे महाराज जी सिद्धांति महाराज का, ये ह्यूस्टन मेरा होम है महाराज रहते हैं और घर घर में प्रवचन करते हैं, जाते हैं। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु एक स्थान पर तो रहते थे, किंतु सर्वत्र सब लोग घर घर में जाते। बस में इसमें वर्णन है इसमें चैतन्य। तो श्रीमान महाप्रभु ये त्रिमल भट्ट, वेंकट भट्ट, प्रबोधानंद सरस्वती, ये लोग कोई साधारण नहीं थे। सब राधा गोविंद के नित्य परिकर। जैसे प्रबोधानंद सरस्वती के बारे में लिखा गया, ये वास्तव रूप में राधा कृष्ण की नित्य लीला में कहा जाता है तुंग विद्या सखी कहा जाता है। कौन सा सखी? तुंग विद्या सखी। राधा जी के जो 8 जो प्रधान सखियां जो है, ललिता, विशाखा, सुदेवी, चित्रा, चंपकलता, तुंग विद्या, ऐसे अष्टसखी। ये अष्टसखी में अन्वय प्रधान है तुंग विद्या सखी। किंतु लोक लीला में ऐसे सुंदर लीला कर रहे हैं ये लोग। श्री संप्रदाय से मंत्र लिया, लक्ष्मी नारायण उपासना करते। एक दिन चैतन्य महाप्रभु हास परिहास करते हुए कहने लगे, ये देखो आप लोग की इष्ट देवी कौन है? लक्ष्मी है, और हम लोग की इष्ट देव जो है कृष्ण है। ऐसे महाप्रभु कहने लगे। हमारे कृष्ण जो गोप जाति है। कौन सा जाति है? गोप जाति है। अब तुम्हारे लक्ष्मी कौन से? ब्राह्मणी है, नारायणी। नारायण की पत्नी नारायणी है। किंतु देखो लक्ष्मी देवी ये कृष्ण के साथ मिलने के लिए, रासलीला के लिए इतने क्यों तड़प रही है? आज तक भी वृंदावन में लक्ष्मी देवी कृष्ण के रासलीला में प्रवेश करने के लिए क्या कर रही है? तपस्या कर रही है। महाप्रभु ऐसे कुछ हास परिहास करने लगे, क्योंकि बहुत दिन तक 4 महीने तक रहे, इसलिए बहुत सख्त भाव हो गया, प्रति ऐसे हो। तो महाप्रभु हास परिहास करे कहने लगे, तुम्हारी लक्ष्मी तो मैंने सुना बहुत सती साध्वी नारी है। आज सती साध्वी नारी स्त्री है, और कृष्ण के प्रति इतना आकृष्ट क्यों? तो वो कहने लगे, प्रभु इससे दोष क्या है? अरे कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं है। उन्होंने एक श्लोक भी सुनाया, सिद्धांत तत्व भेद से ओपी शीर्षो कृष्ण स्वरूप रसमेव रसस्थिति। शास्त्र सिद्धांत के अनुसार कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं है। कोई भगवान में भेद सृष्टि करे तो अपराध हो जाता है। ईश्वरे भेद मानी ले होय अपराध। भगवान एक है ना बहु है? कितना है? एक ही है? अनेक स्वरूप प्रकाश कर देते हैं। एकमेव परमात्म स्वाभाविक ही अचिंत्य शक्ति। भगवान एक ही है
अपने अचिंत शक्ति के द्वारा अनेक स्वरूप प्रकट करते। जैसे जैसे भक्त होते हैं भगवान उस भक्त के निकट वो स्वरूप प्रकट करा देते। कोई बाल गोपाल के रूप में सेवा कर रहे हैं, कोई सख्त भाव में सेवा आदि करते, कोई वात्सल्य भाव में सेवा करते, कोई सख्त भाव में सेवा करते, कोई माधुर्य भाव में सेवा आदि करते। भगवान तो एक ही है, एक ही भगवान वैकुंठ में नारायण के रूप में प्रकट होते हैं, है कि नहीं? एक ही भगवान कृष्ण अयोध्या में नारायण रामचंद्र के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान अलग नहीं, एक ही। तो एकमेव परम तत्वं स्वाभाविकी अचिंत सत्ता। तो प्रभु भास परिहास क्यों करे? इससे लक्ष्मी देवी के दोस्त तो नहीं। केवल रस विचार में हम देखते हैं ये कृष्ण और नारायण रामचंद्र अनेकों बताते हैं। कोई राम की उपासना करते, कोई कृष्ण की उपासना करते, कोई नारायण की उपासना करते। ये दोष क्या है? तो महाप्रभु कहने लगे बट दोष तो नहीं है, किंतु एक आप बताओ, लक्ष्मी देवी सती साधी नारायण के वृंदावन में इतने दिन तक तपस्या कर रही है, रास में प्रवेश क्यों नहीं करनी पाई? तब ये लोग कहने लगे हाँ प्रभु ये तो मेरे समझ में नहीं है। लक्ष्मी सती साधी नारी है ठीक, किंतु देखो शास्त्र में लिखा गया ये वेद आदि पुराण आदि ये लोग साक्षात रूप में मूर्तिमान होकर के तपस्या आदि किया, अब तपस्या आदि करके ये लोग रास में प्रवेश किया। इसके भी प्रमाण है बोध जी का शास्त्र में। यहां तक भी शास्त्र में लिखा गया रास कृष्ण जब रास किया वृंदावन में, जो पंचायतिक रास हुई, उस रास में अनेकों प्रकार के गोपियों के प्रवेश हुए। कोई साधन सिद्धा, कोई नित्य सिद्धा, सुतिचरी, मुनिचरी, ऐसे गोपियों के बारे में कहा गया, किंतु लक्ष्मी देवी क्यों प्रवेश नहीं किया? यहां तक भी शास्त्र में लिखा गया, देखो भगवान रामचंद्र जब विवाह करने के लिए जनकपुर में प्रवेश किया, अब भगवान रामचंद्र के दर्शन करके जनकपुर की जितने भी कन्याएं थी, स्त्रियां थी, भगवान रामचंद्र के सौंदर्य माधुर्य देख करके वो लोग भी मैं को स्वीकार नहीं करेंगे। और उसी स्त्रियां जो है देखो रामचंद्र के कृपा से लोग ब्रज में जन्म लिया, ब्रज गोपी के रूप में प्रकट हुई, फिर रासलीला में भी आ गई। यहां तक स्वर्ण सीताएं भगवान रामचंद्र जब जगना आदि करने लगे तो उस समय भगवान रामचंद्र स्वर्ण सीता प्रस्तुत करके यज्ञ किया, और वो समस्त स्वर्ण सीता भी करने लगे। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग तो भगवान रामचंद्र उनके भी आशीर्वाद दिए, और वो स्वर्ण सीताएं भी गोपी गृह में जन्म ग्रहण किया, रास में भी प्रवेश किया। यहां तो ये दंडकारण्य ऋषि लफ्ज जो है पद्म पुराण में वर्णन है, त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जब दंडकारण्य में जब चलने लगे, उस समय ऋषि लोग ऐसे भजन करते, गोपाल मंत्र जप करते करते। ये गोपाल मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र है, कृष्ण मंत्र व गोपाल मंत्र। जो लोग ने गोपाल मंत्र प्राप्त किया ये कोई साधारण नहीं। ऐसे गोपाल मंत्र जप करते करते उनके हृदय में गोपी भाव प्रकट हो गए, और उस समय भगवान रामचंद्र के देख करके उनके हृदय में कृष्ण की उद्दीपना हुई, और वो समस्त मुनि लोग गोपी भाव में भेद भगवान रामचंद्र के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय भगवान रामचंद्र कहने लगे, हे मुनि लोग, आप लोग के हृदय के भावना मैं जान गया, किंतु इस रामलीला में मैं आप लोग की स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैंने इस रामलीला में मैंने सीता देवी के निकट मैंने एक उपहार दे दिया।
क्योंकि सीता विवाह के समय भगवान रामचंद्र स्वयं सीता जी के कहने लगे, हे सीते, यद्यपि हमारे कुल में बहु विवाह की प्रथा है, उसमें सीता जी की बात, किंतु देखो हे सीते, इस रामलीला में मैं एक पत्नी व्रतधारी, माने ये सीते आपके छोड़ करके दूसरी कई स्त्री को मैं स्वीकार नहीं करूं। इससे संग भगवान रामचंद्र वो समस्त मुनि ऋषि को कहने लगे, ये आप लोग की मनोभावना तो मैं समझ गए, किंतु आप लोग को मैं स्वीकार नहीं कर सकता, किंतु आप लोग को मैं वर देता हूं, ये रामलीला के पश्चात जब मैं कृष्ण होकर के ब्रज में आऊं, आप लोग सभी मेरे जोग माया के प्रभाव से वृंदावन में, ब्रज में, गोपी गर्भ में गोपी शरीर प्राप्त करोगे, और मेरे नित्य सिद्धा गोपियों की संग प्राप्त करके आप लोग सभी रासलीला में प्रवेश करोगे। इससे श्रीमद् भागवत में, शास्त्र में वर्णन है, ये रासलीला में अनेकों प्रकार के गोपियों की प्रवेश माना लिखा गया, श्रुतिचरी, मुनिचरी, सिद्धा, साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा, यहां तक भी देव कन्याएं, जनकपुरी आदि वो समस्त स्त्रियां जो है सभी भगवान की कृपा से और रासलीला में प्रवेश किया। इसे चैतन्य महाप्रभु इसी कथा को कहने लगे, ये आप ये बताओ, अभी तक लक्ष्मी देवी वृंदावन में तपस्या कर रही है, किंतु लक्ष्मी देवी की तो प्रवेश अधिकार नहीं है, क्यों? सभी को श्रुतिचरी, मुनिचरी, ये समस्त गोपियों के तो प्रवेश अधिकार मिल गया साधन करके, लक्ष्मी देवी के क्यों नहीं हुआ? महाप्रभु ये प्रश्न करने लगे, और इसकी कथा जो श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण कर दिया, नाग पत्नियों की स्तुति कर, कस्सानुभव अश्वदेव विद्महे तवांग्री रेणु वर्षाधिकार, इस श्लोक में स्पष्टीकरण कर दिया। महाप्रभु कहने देखो भागवत में भी ऐसे लिखा, श्री ललनाचरोत्तप, आज तक भी लक्ष्मी देवी वृंदावन में कठोर तपस्या कर रही है। आप लोग वृंदावन जाते हैं, बेलवन में, जमुना के दूसरी तट पर बेलवन में आज तक भी लक्ष्मी देवी तपस्या कर रही है, किंतु उसके प्रवेश भी कर नहीं है। महाप्रभु जब ये प्रश्न को रखा, तब ये भट्ट, यही तो प्रभुनंद सरस्वती पाद, निर्मल भट्ट, वेंकट भट्ट, इनके सिर में चक्कर आने लगा, बातें सही, अरे प्रभु आप ही बताइए। तो महाप्रभु बहुत सुंदर रूप में बताया, वास्तव लक्ष्मी देवी को किसी गोपी के अनुगत्य स्वीकार करना नहीं चाहती थी। गोपीर अनुगत्य बिना श्री कृष्ण भजले ना पाए भजेंद्र नंदन। यदि गोपी का अनुगत्य नहीं करके कृष्ण भजन करे, भजन नहीं होगा, गोपी का अनुगत्य स्वीकार करना। इधर हमारे भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, राधा भजने यदि मति नाही भेल, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। बहुत सुंदर है, भक्तिविनोद ठाकुर सिद्धांत देते हैं, राधा भजने यदि मति नहीं है, यदि हम राधा जी की अनुगत्य में भजन नहीं करें, वास्तव रूप में हम कृष्ण की सेवा कर नहीं पाए। इसलिए राधा भजने यदि मति नहीं भेल, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। राधा अनुगत्यमय भजन। लक्ष्मी देवी की त्रुटियां क्या थी, दोष क्या थे? लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी चाहे, लक्ष्मी देहे रासे प्रवेशिते। लक्ष्मी देवी चाहती थी जब मैं लक्ष्मी शरीर में ही रास में प्रवेश करूं, किंतु संभव नहीं है। रास में प्रवेश करने के लिए यही विशेष
नियम है। एक तो ब्रज में गोपी गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा, गोपी गर्भ में जन्म लेना ब्रज में। और फिर दूसरी, गोपियों की नित्य सिद्ध जो गोपियां जो है, राधा ललिता आदि ऐसे गोपियों की अनुगत्य स्वीकार करना पड़ेगा। किंतु लक्ष्मी देवी करना नहीं चाहती थी, इसलिए आज तक भी लक्ष्मी देवी बेलगुन में तपस्या कर रही है, संभव नहीं। तो इसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु स्थापित किया ये राधा कृष्ण की भजन की सर्वोत्तम क्या है। और सुन चैतन्य महाप्रभु सुंदर रूप में राधा कृष्ण की भजन की परिपाटी के बारे में बताया, ये कैसे धीरे धीरे हम श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, इसके बाद भाव, फिर प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, अधिरूढ़, मोहन, मोदन और मदनाक्ष महाभाव, ये सब दिखाया। वास्तव श्रीमान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु इन लोग के निकट ऐसे सुंदर रूप में वर्णन किया, सर्वोत्तम माधुर्य भाव की वर्णन किया, जिस कथा सुन करके ये लोग मोहित हो गए। और ये लोग लक्ष्मी नारायण की उपासना छोड़ करके राधा कृष्ण के माधुर्य उपासना करने लगे। यहां पर कुछ लोग कहते हैं जिस संग के द्वारा ही सब प्राप्ति हो जाता है। थोड़ा मैं सिद्धांत थोड़ा बहुत बताता हूं। बोले जैसे संग ऐसे रंग, बोले ऐसे नहीं, ये तो जड़ विचार है। चित जगत में ऐसे है, जीव के हृदय में जो पोटेंशियल रहता है, सत्संग साधु संग आदि करते करते वो जो पोटेंशियल धीरे धीरे विकसित होता है और तब वो उसी रस में प्रवेश करते हैं। यदि पोटेंशियल नहीं रहे, संग करने से प्रकट नहीं होगा। जथा तुषावघातिनम, जिस प्रकार क्या बोलते हैं, तुष जो है हस, उसके यदि आप कूटते रहे, क्या उसे चावल निकलेगा? उसमें तो चावल है ही नहीं। शायद आप लोग जानते कि नहीं जानते, बंगाल में धान होता है ना, पैडी जो होता है, उसमें धान के साथ कुछ जो होता है उसमें कुछ चावल नहीं रहता है, वो पुष्टि नहीं होता है। अच्छा, उसी के कहा जाता है क्या? टूस कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हास है। इसे संस्कृत में जथा तुषावो घाती नाम, हास के यदि बार बार आप टूस के यदि बार बार आप कूटते रहे हम, क्या उसे चावल निकलेगा? नहीं निकलेगा। और जिसमें चावल है धान है, उसके करो तो कुटो तो चावल निकल करके आएगा। तात्पर्य यह है, हमारे भक्ति बनो ठाकुर स्पष्टीकरण करते हैं, जीव जब सरस्वती शक्ति से जब निकलते हैं तब जीव के हृदय में एक पोटेंशियल रहता है, सूक्ष्माति सूक्ष्म में रहता है। साधु संग के द्वारा धीरे धीरे वो परिपुष्ट होकर के विकसित हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके संदर्भ में हम गुरुदेव कहते थे, ये देखो नारद ऋषि सबको जो दीक्षा दिया, नारद ऋषि किसको दीक्षा दिया? ध्रुव महाराज जी को मंत्र दिया कि नहीं दिया? ध्रुव महाराज जी संग दिया। क्या ध्रुव कोई गोपी भाव प्राप्ति किया? नहीं। नारद ऋषि मधुबन में, हाँ वो भी मधुबन में, ब्रज में महाराज जी ये कथा सुनाते हैं। महाराज जी स्मरण कर दिए, महाराज ज्यादा छड़े तो मेरे और भी आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो भी मधुबन में, देखो ब्रज में, क्या उसके ब्रज भक्ति प्राप्ति हुई?
आप तो सभी विद्वान हो, है? नहीं, यहां तक भी ध्रुव महाराज के लिया गया कौन सा भक्त माना जाता है? नहीं, सकाम भक्त में लिया गया है। अच्छा, इसके आगे चलो, आगे की कथा मैं सुनाता हूं। प्रहलाद महाराज ने संग दिया कि नहीं दिया? संग प्रहलाद महाराज अपने विद्यार्थी को कहने लगे, ये देखो मैं जो आप लोग को ये कथा सुना रहा हूं, ये दैत्य बालकगण, ये कथा मैं स्वयं नारद जी के मुखारविंद से श्रवण किया। बोले कैसे? नारद इधर आती नहीं। बोले जब मेरे मां जब गर्भवती थी, कयाधु, मैं कयाधु मां की कयाधु के गर्भ में जब था, और उस समय नारद ऋषि मेरे मां की गर्भजनी जब मैं था गर्भ में, मुझे लक्ष्य करके सारे कथा सुनाए। तो इसी प्रकार कहा जाता है, गुरुदेव कहते थे, मथुरा में तो गुरुदेव इसको बहुत बार बृहद भागवत में तब पाठ करते थे। देखो नारद ऋषि प्रहलाद को संग दिया, ध्रुव के मंत्र दिया, प्रहलाद को संग दिया। क्या उनके हृदय में कई ब्रज भक्ति हुई क्या? आप बताइए, ना कोई गोपी भाव प्राप्त हुए। यहां तक भी गुरुदेव कहते थे, देखो पांडव लोग जो है, भागवत में वर्णन है, नारद ऋषि कभी कभी भ्रमण करते करते हस्तिनापुर में पांडवों के गृह में आ जाते थे। जुअंग नुलोके बतभूरी बाल, इस श्लोक पुष्टिकरण कर दिया। नारद ऋषि भ्रमण करते करते कभी युधिष्ठिर महाराज के गृह में आते थे, उनके भी संग दिया। किंतु देखो ये पांडव लोग को गोपी भाव प्राप्ति नहीं किया, सुन करके तो लोभ हुआ। यहां तक भी स्वयं कृष्ण अर्जुन के भी गोपियों की महत्व भी सुनाया, सुनकर के उसको लोभ तो हुआ। लोभ होकर के वो लोग क्या कि राधा कुंड में वृक्ष के रूप में कठोर तपस्या की, किंतु तब भी गोपी भाव प्राप्ति नहीं। उद्धव आदि बड़े बड़े भक्त लोग नहीं, लोग कहते हैं जिस संत महात्मा के संग से हमारी गोपी भाव प्राप्ति हो जाए, ऐसे नहीं। पोटेंशियल नहीं हो तो कहां से हो जाएगा? यही तो सिद्धांत देते हैं। इसलिए हमारी श्यामरानी दीदी ने एक सुंदर एक ग्रंथ प्रकाशित किया। क्या है ग्रंथ का नाम? है द स्वरूप ऑफ जीवन। उसकी पढ़ी और सिर्फ उन्होंने सारे कोटेशन भी दिया, समस्त आचार्य भी, गुरुदेव की कोटेशन, शिला भक्ति वैभव पूरी मां से कोटेशन, और समस्त गोसाई वर्ग हमारे जितने भी आचार्य हैं सभी के एक कोटेशन देकर के उन्हें सुंदर एक ग्रंथ प्रकाशित किया। हम इसलिए कह रहे हैं जिस संग से नहीं, साधु संग से हमें क्या चित्त निर्मल होगा। क्यों? सत्संग के बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ ना हो। सत्संग के द्वारा हमारा चित्त निर्मल हो। हम इसलिए कह रहे, देखो यदि कोई कहे प्रबोधानंद सरस्वती पाद, वेंकट भट्ट, विमल भट्ट, ये लोग तो लक्ष्मी नारायण उपासक थे और महाप्रभु की कृपा से ये लोग राधा कृष्ण की सेवा आदि की। इस संदर्भ में लिखते हैं वास्तव रूप में इन लोग के हृदय में तो था, गोपी भाव ही विराजमान था। क्यों? मैंने पहली कहा ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद ये राधा कृष्ण के लीला में कौन थे? तुंग विद्या अष्टसुखी में एक सखी का। ये तो केवल भौतिक लीला आदि कर रहे हैं मात्र, ये समस्त विचार बहुत गुरुदेव बहुत इसके बारे में बहुत कुछ बताते थे। यहां तक भी देखो रूप सनातन, कल हम लोग सनातन गोस्वामी बारी के बारे में भी मैंने बताया था प्रातः काल में। सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद राधा कृष्ण उपासना करते थे और उनके छोटे भाई अनुपम रामचंद्र की उपासना करते थे। और ये लोग बोले देखो रामचंद्र भी का कृष्ण की जो है महिमा अधिक है, 64 गुण है कृष्ण में, रामचंद्र में कितने हैं? 62.5 गुण है। और इसी कथा को सुनाते हुए बोले तुम रामचंद्र के भजन करो।
किंतु देखो अनुपम अर्थात जीव गोस्वामी के पिताजी अनुपम, वो भजन नहीं किया, वो रोने लगे जब मैं तो अपने को रामचंद्र के चरण में अपने को समर्पित कर दिया। यहां तक भी चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त जो रामचंद्र के लीला में हनुमान थे, मुरारी गुप्त भी कहने लगे मुरारी तुम कृष्ण भजन करो, इनकार नहीं किया। इसके तरह सिद्ध होता है, स्पष्टीकरण होता है। ये जीव गठन के समय और उनके भीतर कोई पोटेंशियल है, साधु संग करते करते वह भाव धीरे धीरे विकसित होगा और करते करते जब स्थायी भाव में चले जाएंगे तब वो परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि हमारे ईश्वर रूप गोस्वामी पास स्थायी भाव की भी डेफिनेशन भी दिया है। स्थायी भाव जो स्थिर हो जाता है उसके नहीं हो, परिवर्तन नहीं हो, तो स्थायी भाव किसी ने कहा गया। इसमें बहुत तत्व सिद्धांत दिया। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद देखो महाप्रभु की कृपा से उन्होंने राधा कृष्ण के भजन आदि की, फिर उन्होंने वृंदावन में आकर के भजन आदि किया। बहुत सुंदर समय कथा है। उन्होंने सबसे इतने सुंदर ग्रंथ लिखा जिसे कहा जाता है राधा रस सुधानिधि। ऐसे सुंदर जो मधुर ग्रंथ है, न भूतो न भविष्यति। और यहां तक भी चैतन्य महाप्रभु पर उन्होंने ग्रंथ लिखा, चैतन्य चंद्रामृत ग्रंथ उन्होंने लिखा। यहां तक भी महाप्रभु के जो नवद्वीप धाम की महिमा इतने सुंदर लिखा, जिसमें लिखते हैं आराधितो नववनम वृंदावनस्ते नाराधितो नववनम वृंदावन एव दूरे आराधितो द्विजसुत ब्रजनागरस्ते नाराधितो द्विजसुत न तबे कृष्ण। इसके देखो आराधितो नववनम, जिस लोगों ने नवद्वीप धाम के आश्रय किया, नवद्वीप धाम की सेवा की, वही लोग वृंदावन में प्रवेश करेंगे। आराधितो नववनम वृंदावनस्ते नाराधितो नववनम, नववन नवद्वीप धाम। जो नवद्वीप धाम आश्रय नहीं किया तो कभी ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकते। आराधितो द्विजसुत, द्विजसुत सचिनंदन गौरहरि, जिन लोगों ने सचिनंदन गौरहरि की आराधना करते हैं वही लोग वृंदावन में गोपियों की जो प्राण धन जय वृंदन श्याम सुंदर की प्राप्ति करेंगे, माधुर्य रस में प्रवेश करेंगे। और जिन लोगों ने सचिनंदन गौर सुंदर के आश्रय नहीं किया वृंदावन में, एक गोपी भाव प्राप्ति नहीं कर सकते। बहुत सुंदर इसमें लिखा है। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद की इतने सुंदर ग्रंथ जो है अमूल्य ग्रंथ है। जब तक यदि राधा भाव प्राप्ति करना है, राधा जी की दासी प्राप्ति करना है तो अति अवश्य हमें कौन सा ग्रंथ पाठ करना चाहिए? ये राधा रस सुधानिधि। समय नहीं लेता हूं अभी, एक श्लोक राधा रस सुधानिधि के एक श्लोक आप लोग के निकट मैं सुनाता हूं। मैं इस श्लोक कई 3 महीने तक इसी श्लोक में जहां जहां बजाता हूं एक ही श्लोक को मैं सुनाता रहता हूं, थोड़ी सी व्याख्या भी कर देता हूं। राधा करवचित पल्लव बल्लरी के राधा पदांक विलसित मधुर स्थली के राधा जसो मुख मत्त खगा बली के राधा विहार विपिनम मनो में रमतम। प्रबोधानंद सरस्वती का कितना सुंदर राधा निष्ठा के बारे में बता रहे हैं। अब हम लोग निष्ठा देवी के घर में आइए ना, अनुराग और निष्ठा देखो कितने जुगल जुड़ी हो गया यहीं पर। जब अनुराग नहीं हो निष्ठा नहीं होता है, और निष्ठा नहीं हो तो अनुराग नहीं होगा। मतलब वृंदावन बिहारी थोड़ा तो ताली तो बजाओ। राधा जी के चरण में कितने सुंदर ये श्लोक बताया निष्ठा के बारे में। राधा करावचित पल्लव बल्लरी के प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं। अनेक तो श्लोक लिखा है राधा निष्ठा,
राधा जी के बारे में, जो ब्रह्म सुख नारद विष्णु अलग थे, अनेक श्लोक है, किंतु मैं यही श्लोक उधर 2 मिनट में समाप्त करता हूं, क्षमा करे। राधा करवचित पल्लव वल्लरी के, बोले वृंदावन जाओ, क्या दर्शन करोगे? वहां पर जाओगे, जितने भी वृक्ष लता आदि में जो है, स्वर्ण लता है, गोल्डन क्रीपर्स का जो, ये गोल्डन क्रीप, ये जो स्वर्ण लता आदि जो है, संग राधा जी की हाथों के द्वारा प्रथित है, माना रोपण किया, एक नहीं हजारों। जब कृष्ण वृंदावन में जब पधारते हैं, वो समस्त लताएं राधा जी के इंगित से स्वागत करते हैं, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, मम मन मंदिरी स्वागतम स्वागतम, बहुत सुंदर। राधा प्रवचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांग विलसित मधुर स्थली के। प्रबोधानंद सरस्वतीपाद कहते हैं, जब वृंदावन जाओ तो सर्वत्र क्या दर्शन करोगे? राधा जी की चरण कमल की चिन्ह दर्शन करोगे। एक नहीं, जहां जहां पर जाओगे सर्वत्र क्या देखोगे? राधा जी की चरण चिन्ह आपको दिखाई पड़ेगा। कौन कौन राधा जी के चरण कमल को दर्शन किया? चरण छाप, फुटप्रिंट सब श्रीमती राधिका, कहां का दर्शन किया भाई? हम जाते हैं जावट में, जाते हैं जावट में, जाते हैं वो जावट में जो महल जो है उसके ऊपर छत पर आज तक भी राधा जी के चरण चिन्ह विद्यमान है। स्वयं गुरुदेव गुरुदेव गोस्वामी महाराज इसलिए वो स्थानों पे जो है बहुत महत्व देते थे। कहीं जाए या नहीं जाए, जावट में जाना पड़ता है। क्यों हमारे भक्त मनोहर ठाकुर लिखते हैं, जन्म कहां होगा? विश्वभानुपुरे जन्म लोइब जावटे विवाह होगा। राधा जी के विवाह स्थल दिखाई दे, बहुत सुंदर चमकताएं हैं, अभी तक भी चरण चिन्ह दिखे पड़े। और उस स्थान में तो है, संत महात्मा के साथ जाए तो आपको वर्णन करेंगे, कृष्ण के चरण चिन्ह तो देखे होंगे से, चरण पहाड़ी, छोटी बैठान, बड़ी बैठान, अनेक स्थल पर कृष्ण के चरण चिन्ह। किंतु देखो आप राधा जी के चरण चिन्ह की महिमा बता रहे। हमारे महाराज जी जब जाते हैं बताते रहते हैं, महाराज बहुत समय, विशेष करके नंदगांव के सन्निकट में जब चरण पहाड़ी वहीं पर भी है, महाराज जी बहुत सुंदर रस कथा वहां पर सुनाते हैं। तो शब्द राधा के चरण चिन्ह। और राधा जसो मुखो मत्त खगावली के, वृंदावन जाओ सर्वत्र आपको क्या हो, क्या गुंजाइश सुनाई पड़ेगा? बोले राधे राधे राधे। पूजो तो कोकिल हंस सारस गना किरण मयूरा कुले, पूजो तो कोकिल हंस सारस गना किरण मयूरा कुले। देखो वृंदावन में जाइए, आज तक भी ध्वनि सुनाई पड़ेगा। वहां पर मोर मयूरी, कोयल, ये सब क्या, सब राधा जी के नाम कीर्तन करते हैं। अभी तक राधा वृंदावन में कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते? राधे राधे राधे। कल मैंने कहा था ना, बोले वृंदावन में दो ही, एक है सेठ और एक है सेठानी। सेठ कौन है? वृंदावन के सेठ कौन है? कृष्ण है। और सेठानी कौन है? राधा रानी। पंडित लोग कहते हैं कृष्ण यदि एक शेर हो और राधा रानी है सुआ से, बोले वृंदावन बिहारी लाल। बोले राधा वृंदावन में जाए तो राधा राधी बोलना पड़ता है। बोले जिसको नमक खाओगे उसको गुण करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है नहीं तो लोग क्या कहते हैं? नमक हराम कहते हैं ना। बोले हमारे खाया और दूसरे के गुण करके आया, दूसरे के बखान किया है। बोले जिसके खाओगे उसको तो गुण करो, कुछ कुछ बोलो, तब तो पेट में हजम होगा, है कि नहीं? अरे बात सच है कि नहीं है? बोले वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन के अधिष्ठात्री देवी संग राधा रानी है। इसे वृंदावन राधा रानी के कहा जाता है वृंदावनेश्वरी राधा रानी की जय है।
इसलिए देखो वृंदावन की सारे पक्षियां जो है क्या बोलते हैं, राधे राधे राधे। कोई कृष्ण थोड़ी बोलते, कोई कृष्ण नहीं बोलते। आप भी जाइए, आपको देख करके सभी सब छोटे बच्चा से भी क्या बोलेंगे, राधे। अरे जोर से बोलो भाई। आप लोग कहां बैठे हुए अभी, अरे वृंदावन में, ब्रज में कहां बैठे हैं आप, हैं? रिक्शा वाले भी राधे राधे बोलते हैं, हैं? कोई भी, सभी लोग बोलते हैं राधे 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 राधे, हैं? इसलिए हमारे ब्रज में क्या बोलते हैं, वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होई। बोलो राधा रानी की, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधिन को दास, जन्म जन्म मोए दियो, वृंदावन को वास। भले उनके कीर्तन करो तो कुछ हमें मिलेगा, है क्या जी? हाँ अभी बोलता हूँ, समझ है। और राधा विहार विपिने रमतांग मनो में, प्रभुदानंद सरस्वती पाद इस श्लोक में कह रहे हैं, मेरे मन कहां पर विचरण करते रहे, यही राधा रानी की स्थान। बोले कौन सा स्थान, राधा आधिपत्य वृंदावन वासं ममस्तु में, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं। राधा आधिपत्य, ये वृंदावन जहां पर, सर्वत्र नहीं, राधा आधिपत्य वृंदावन वासं ममस्तु में। तो वृंदावन कौन सा जगह नहीं हम जाएंगे, बोले चंद्रावली के स्थान पर नहीं जाएंगे। चंद्रावली के स्थान पर जाओ तो राधा जी आपके नाम क्या कर देंगे, काट देंगे। भजन रस ग्रंथ में पढ़िए, गुरुदेव ने लिखा, हम नहीं करे। बहुत सुंदर पाखंड, ज्यादा बोले तो हमारे बड़ा हो जाए, एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो जाता है। इसलिए राधा जी के नाम कीर्तन, बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, अरे राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। बोलो राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे राधे राधे। मैं तो रटो राधा राधा नाम, सखी तेरी गलियों में, मैं तो रटो राधा राधा नाम, सखी तेरी गलियों में, मैं तो आयो वृंदावन धाम, सखी तेरी गलियों में, मैं तो आयो वृंदावन धाम, सखी तेरी गलियों में। चलो राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, राधे राधे जय जय राधे। बोलो हमारा धन राधे 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 राधे, हमारा धन राधे राधे, राधे 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 जय जय राधे। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन में रमन गए रे सतु पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन में रमन गए रे सतु पावन वृंदावन। राधे भाई राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन में रमन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन में रमन गए रे सखी पावन वृंदावन।
ओ ललिता नाचे विशाखा नाचे नाचे सती गान ललिता नाचे और मेरे बन गए सती अपन Krishna nache nache gopigan. Arti, Arti. Yeah, he wants to go. Prashant.
इतनी बड़ी एक्सरसाइज उसके बाद बोले हैं शाबाश कॉम्पिटिशन कराइए इसके हो जा रहा है आदमियों की क्या औरतों मेरे को मजा आया कह रहे आदमियों की आवाज तेज है औरतों की तो ऑब्वियसली औरतों की नहीं होती है। अच्छा लेडीज मैं बोलूंगा हरी बोल, आप लोग जोर से चिल्लाकर बोलना हरी बोल, इनको हराना है। निष्ठा दी देना आ जाओ, इसको ले जाओ, इसको इज्जत का सवाल है। इज्जत की सवाल है। इधर बीच में आओ। और सब सिर्फ लेडीज बोलेंगी हरी बोल, हरी बाकी बढ़िया लोग बोल हरी बोल, ये बताने वाली है मंगला वाली, ये बताने वाली है कृष्ण वाली। आप लोग नहीं हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी ये जितने जेंट्स लोग हैं ना इनकी आवाज तेज है लेकिन लेडीज की आवाज बड़ी मधुर है। ठीक है
अच्छा हाथ खड़े करके थोड़ा सा उछलना ना, जिसके घुटने में ठीक हो जाए। निताई गौर हरि Krishna Bhakti Prade Devi Sajjavajay Namo Namaha Panchakopa Namo Namaha Jai आप सबको प्रसाद की बहुत अलग हो रही है तो प्रसाद महाप्रसाद आप सबका इंतजार कर रहा है, लेकिन उससे पहले एक दो अनाउंसमेंट।
कल सुबह बहुत सुंदर इसी प्रकार से कार्यक्रम है हरि कथा और कीर्तन का हमारे तपन प्रभु के घर पे। तपन प्रभु आप तो ये